Welcome 11 commerce students, accountancy subject to online classes. Today the topic is cash book. So you know about the cash book, what is cash book, what are the types of cash book. So in this class I am going to discuss. So cash book records all the cash receipts and cash payment. Whatever you received, you can put in the cash receipt, and whatever you have to pay, you can put in the cash book. The definition is there. You can see cash book is a book in which all transactions relating to cash receipts and cash payments are recorded. Next is it starts with the cash or bank balance at the beginning of the period. It's cash and bank. So regarding the types of cash book, you know how many types of cash book are. First is single column cash book. It is very easy. You have to put the all receipt side and all payment side. Debit on the receipt side, credit on the payment side. Okay. Then double column cash book. You have to understand cash, whatever that you have taken, and triple column cash book. You don't need to write. And third is petty cash book. That means miscellaneous, whatever the miscellaneous expenses are there, it is known as petty cash book. So now next class I will going to explain the format and the numerical question, students. Okay students, now here is the format of single column cash book. So first we started of the single column cash book. Then whatever the name of the traders, Amit traders, you can, the question is written another traders, you can write that. But for example, I am going to show this. Now we have to make single column cash book, that is cash book, date, receipts, LF, it is cash book, it is not cash account. In ledger, you know that LF should be JF if there is a ledger account, but it is a cash book or journal, we can write LF. Okay, that amount rupees, date, payments, LF amount rupees. Besides, many students can write particulars, but they have to know about that debit side all the receipts item, credit side all the payment item. Okay. Now first we start the question. Question will already provide you on the screen. I will show the question. Now just we have to know the answer. First I am going to read the question. In screen you can see the question, but now I am going to read the question. So recording of transaction in the single column cash book and its balancing. Consider the following transaction of Amit traders. Observe how they are recorded in the single column cash book. So starting 2017 date is there, cash in hand. Amount is 30,000. If there is starting cash in hand, जब भी कैश इन हैंड दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको इधर डेबिट साइड में आ जाना है. ठीक है, डेट में आप इधर लिख दो, जैसे 2017 लिख दो. और अगर दिया हुआ है कौन सा नवंबर, क्योंकि देखो कैश पूरा मंथ को लेकर, जनरली कैश मैक्सिमम क्वेश्चन में देखो कैश पूरा मंथ को लेकर चलता है. 15 डेज भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, लेकिन मंथ मैक्सिमम क्वेश्चन में मंथ पूरा. जैसे नवंबर का महीना है तो नवंबर का, जनवरी का महीना है तो जनवरी. ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए. कैश इन हैंड दिया हुआ है तो हम स्टार्ट करते हैं. नवंबर 1 को दिया हुआ है यहाँ पे, नवंबर 1, तो हम स्टार्ट करेंगे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे बाई टू बैलेंस बीडी. ठीक है, 30,000 दिया हुआ है, स्टार्ट होगा 30,000. क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे भेज दूंगा आप लोगों को, क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या है. ठीक है, तो स्टार्ट किए हैं टू बैलेंस कैश इन हैंड 30,000 है तो 30,000. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत. गुरमीत से पैसा आया, सेल यानी रिसीट, सेल किया गया तो तुम्हें पैसा आया. क्या बोल रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत, गुरमीत से पैसा. ठीक है, तो ये सेल नहीं हुआ, ये गुरमीत से मुझे पैसा मिला. कब मिला, तो नवंबर 4 को. यहाँ पे देखोगे टू गुरमीत, कितना मिला, तो 12,000. नेक्स्ट नवंबर 8 को इंश्योरेंस पेड, आपने पे किया, खर्चा है
तो यहाँ भी लिखो 2017 नवंबर 8, क्या लिखेंगे? बाय इंश्योरेंस, बाय इंश्योरेंस कितना है? 6000। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे लिखेंगे हम लोग नवंबर 13 को परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नवंबर 13 बाय फर्नीचर। ये फर्नीचर एसेट्स है, वो भी फिक्स्ड एसेट्स है। हाँ, अगर परचेज गुड्स रहता तो आप यहाँ पे बाय परचेज लिखते, लेकिन यहाँ पे परचेज फर्नीचर है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे फर्नीचर को लिखोगे क्योंकि फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट। ओके स्टूडेंट्स, लाइट की कमी थी थोड़ी सी, तो ब्राइटनेस बढ़ा दिया गया। देखिए आगे, तो फर्नीचर कितना है? 13,800 का खरीदा गया, तो 13,800। आगे क्या बोल रहा है? नवंबर 16 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब गुड्स को बेचा गया पैसा आने के लिए, सामान बेचने तो पैसा आएगा। तो यहाँ पे नवंबर 16 पैसा आ रहा है, तो नवंबर 16 लिखेंगे टू सेल्स 28,000, we have to write that is receipt side. November 17 purchase goods from Mudit in cash, मतलब मुदित से मिला है कैश, बट इट इज रिटन इन कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश, वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित बट वी हैव परचेज इन कैश, so what we write is expense in November 17 by purchase। क्यों हमने लिखा परचेज? क्योंकि हमने परचेज किया मुदित से, बट कैश। बहुत सारे बच्चे भाई मुदित करके लिए, पर आप मुदित से लिए लेकिन आपने पैसा भी तो दिया, नहीं पैसा दिया रहता तब भाई मुदित करते। कितना में? तो 17,400 लिख दीजिए, 17,400। नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदा गया कब? नवंबर 20 को, तो नवंबर 20 लिख दीजिए बाय स्टेशनरी। अब स्टेशनरी परचेज है तो बाय स्टेशनरी आप लिख सकते हो, तो बाय स्टेशनरी कितना का है? 1100। उसके बाद दिया हुआ है नवंबर 24 को कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, तो रुक्मणी को पैसा दिया गया है, पेड किया गया है। ठीक है, फुल सेटलमेंट कब किया गया? 24 को। यहाँ पे हम लिख देंगे नवंबर 24, पेमेंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रुक्मणी। कितना देना है? 12,500 लिखा हुआ, तो 12,500 जितना हम दे रहे हैं उतना हम लिख देंगे। ओके, फिर नवंबर 27 को सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश, सेम वही है, गुड्स दिए बेच दिए लेकिन कैश लिए, कमल को दिए सामान बट कैश मिला हमें। ठीक है, तो नवंबर 27 को पैसा आ रहा है, नवंबर 27 टू सेल्स, हम नाम नहीं लिखेंगे, कैश है 18,200। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नवंबर 30 को पेड मंथली रेंट, आपने रेंट दिया। ठीक है, तो नवंबर 30 बाय रेंट, रेंट कितना का है? 2,500। फिर नवंबर 30 को पेड सैलरी, सैलरी दिया गया तो भी खर्चा है। अगेन नवंबर 30 बाय सैलरी कितना है? 3,500 लिखेंगे। देन नवंबर 30 को डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में मैंने पैसा भी जमा किया, मेरा इधर से पैसा जा रहा है। ठीक है, बैंक में दे रहे हैं नवंबर 30। ठीक है, तो लिखेंगे बाय बैंक, हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, हम जो पैसा है वो डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। पैसा तो जा रहा है, पैसा तो जा ही रहा है, कितना का जमा किया? 8,000। अब आप मिला लो, आपको कौन साइड बड़ा लग रहा है, क्रेडिट साइड बड़ा लग रहा है कि डेबिट साइड बड़ा लग रहा है? तो डेफिनेटली मेरा, हम अगर टोटल करेंगे तो मेरा डेबिट साइड बड़ा लगेगा, क्योंकि हम ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट अर्न कर रहे हैं। तो टोटल करेंगे 30 + 12 42, 42 +
28, that is 70, total 88,200. Here we write 88,200. Now we plus all the items, okay? Then there is amount. Again we have to write a number 30 by balance CD. CD will calculate this amount and the difference is 23,400. Okay, you can match. And this is a normal balance, goes to the last December 1st to balance BD 23,000. So student, that is the right answer. You can calculate all the numbers. It is a 23,400 is the right answer. That is a single column. Okay student, thank you.